اب میں گزارش کرتا ہوں جناب سید مراد علی شاہ صاحب سے وزیر اعلیٰ سندھ کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Chairman Senate, Honorable Speaker, National Assembly, Federal Ministers, current and former Senators, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. چیئرمین صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے موقع دیا یہاں پہ اس ہاؤس میں بیٹھنے کا, اور میرے لیے خاص طور پہ یہ کافی پریولیج کی بات ہے کہ اسی ہاؤس میں میرے والد الیکٹ ہوئے اور بیٹھے, اور وہ یہاں سے چیف منسٹر بنے, اور میں میری کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے پھر واپس ریورس ڈائریکشن میں آؤں. سر, آپ نے ایک اور بھی مہربانی کی, ہم صوبوں کو آپ نے اپوزیشن پہ کی طرف بٹھایا, لیکن اچھا کیا اس لیے کہ میرے والد بھی جب ممبر تھے تو وہ اپوزیشن میں تھے, شاید انہی کسی کرسیوں میں سے ایک میں بیٹھے ہوں گے. تو دیٹ از آلسو مومنٹ آف پرائڈ فار می. یہ بڑی پلاننگ سے ہوئی ہے شاہ صاحب, اس لیے آپ کو یہاں بٹھایا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی پلاننگ کے. چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا, اور میں اپنے صوبے کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں سینٹ کو کہ اس نے آج اپنی گولڈن جوبلی کا یہ سال منا رہے ہیں اور 50 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں. سینٹ کا ادارہ ہماری پہلے بھی 2 کانسٹیٹیوشنز 56 اور 62 کی بنی تھی, اور ان دونوں کانسٹیٹیوشنز میں یونی کیمرل لیجسلیشن کی طرف زور تھا, بلکہ دوسری والی میں تو پریزیڈینشل فارم آ گیا تھا 1962 میں. اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ ہی تھی کہ انہوں نے صوبوں کو امپاور کرنے کے لیے بائی کیمرل آپ کے ہاؤسز بنائے, اور اس میں سینٹ میں 4 صوبوں کی یکساں نمائندگی رکھی تاکہ ایک پروڈ میجورٹی سے کوئی چیز پاس نہ ہو, اور ہر چیز جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہونی ہے وہ سینٹ سے بھی پاس ہونی ہے. تو صوبوں کا ایک جیسے بیلنسنگ فیکٹر ہے وہ سینٹ سے آیا, اور یہ انہی کو ٹریبیوٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا, بلکہ اس آئین کو اس طریقے سے رکھا کہ آج تک اور جتنا عرصہ وہ آئین سسپینڈڈ تھا یہ ملک ایک ویکیوم میں, ایک کیوس میں تھا. اور اس کے بعد خاص طور پہ جب 18ویں ترمیم کے بعد 1973 کے آئین کو ریوائیو کیا گیا تو ہمیں واپس اس دن کے بعد سے اس ملک کو بہتر طریقے سے ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں گورنر صاحب کی کافی باتوں سے متفق ہوں, لیکن کافی باتوں سے بڑے ڈومس ڈے پکچر پینٹ کی, ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے گورنر صاحب. اور ہمیں جو ہے نا ہم کس کا ذکر کریں, میرا خیال ہے ہم ان لوگوں کا ذکر کریں جنہوں نے خاص طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا, جنہوں نے ہمیں یہ آئین دیا جس کی وجہ سے ہم ابھی تک اکٹھے ہیں اس ملک میں. اور ان سیاستدانوں کا ذکر کریں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, شہید ہوئے ہیں ان آرڈر ٹو ہیو ڈیموکریسی ان دس کنٹری. تو ہمارے پاس بہت لوگ ہیں دیکھنے کے لیے, ہماری ایسی بات نہیں ہے, ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ کا ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. ہم بڑوں کو نہیں دوش دے سکتے یا ان کے لیے کچھ کہہ سکتے. سر میں کوشش کروں گا جلدی سے تھوڑا سا بول لوں اور موقع کی مناسبت سے کچھ بات کروں. کچھ دنوں پہلے یہ جیسے ہمارے آئین کا بھی 50ویں سالگرہ ہے, اور ہماری پولیٹیکل پارٹی نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے لیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اور محترم سینیٹر فارمر چیئرمین رضا ربانی صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور وہ کچھ دنوں پہلے کراچی آئے تھے اور مجھے موقع ملا تھا وہاں بات کرنے کا. میں اسی آئین کے حوالے سے ہی بات کروں گا, اور میں صوبہ سندھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں یہ بھی I am proud that my province, the assembly of my province, passed the first resolution for creation of Pakistan. We consider ourselves as the creators of Pakistan in Sindh. اور اس سے پہلے بھی میں اگر ہسٹری میں جائیں گے تو سندھ بامبے کا حصہ ہوتا تھا, اور 1935 میں جب ہمیں آزادی ملی, دیٹ از واٹ لیڈ دی فاؤنڈیشن آف پاکستان
और ये टू नेशन थियरी उधर से शुरू हुई। खैर आई वोंट गो इनटू हिस्ट्री। 73 की कॉन्स्टिट्यूशन, 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हर शहरी के ऊपर लाजिम है कि उसको वो फॉलो करे, लेकिन जो लोग, जो 3 क्लासेस हैं, और मैंने ये पहले भी जिक्र किया था, मैं उसी को रिपीट करके, लेकिन मैं थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाऊंगा आज, कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिसमें कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलियां हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, बाकियों के तो ओथ अपने होते हैं कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, लेकिन ये 3 क्लासेस की एक और जिम्मेदारी भी आइन ने दी है, और वो जिम्मेदारी दी है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सबके लिए है कि जी आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये इनकी प्लस जुडिशरी की। तो 3 सॉर्ट ऑफ सुतून है, द लेजिस्लेचर, द executive and the judiciary. As long as we do not trespass into each other's domain, हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। हमें हमेशा प्रॉब्लम तब हुआ है जब यहाँ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के टर्फ में इंटरफियर करता है, यहाँ वाइस वर्सा, और आजकल ख़ास तौर पे जब जुडिशरी, और वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स दे चुके हैं कि वो जुडिशियल ओवररीच इतनी बढ़ गई है। और मैं सिर्फ कुछ देर 2-4 मिनट इसी पे बात करूंगा कि इस जुडिशियल ओवररीच को हमने, यानी हम आप पे, मुझ पे, इन असेंबलीज पे और एग्जीक्यूटिव पे फर्ज बनता है कि हम प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन को करें। मैं इसके थोड़े से एग्जांपल्स देता हूँ। पिछले कुछ दिनों के ऐसे हमें जुडिशरी से मिलते हैं, फेडरल मिनिस्टर लॉ बैठे हैं, वो सुनेंगे। एक मुझे कल ऑर्डर मिला है जुडिशरी का, और मैं कह रहा हूँ एक एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब लेजिस्लेचर में इंटरफेरेंस हो गई है, और उसको आपने चेक करना है, हम सब ने मिलकर चेक करना है। कल एक हुक्म मिला है कि एक कानून बनाया था सिंध असेंबली ने कि जी इस कानून का टाइटल आप चेंज कर दें, और वो ऑर्डर कर दिया उन्होंने। वो चाहे कंटेम्प्ट हो या ना हो, सिंध असेंबली नहीं करेगी, वो बात मानेगी, हमने कह दिया। उसके अलावा एक और ऑर्डर मिला है जो सेक्रेटरीज को बुला के कहा जाता है कि जी आप चीफ मिनिस्टर से जाके ये समरी अप्रूव कराएं। दिस इज एन ऑर्डर, द होम सेक्रेटरी विल इंश्योर that the chief minister approves this summary. I am not going to approve this summary. I am going to approve whatever I feel is correct, whatever I feel is right, whatever I feel I have the powers under the constitution. So sir, इसी तरीके से हमें problems आती रही हैं when there is, constitution के अंदर वफाक और सूबों के जो अख्तियारात हैं और उनकी आपस में रिलेशनशिप है, वो बड़ी खूबसूरती से, बड़ी साफ तरीके से बताई गई है। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ दौर में बड़ी आवाज़ें आती है, कभी बहुत नहीं, मैं तो आर्टिकल सर, आई एम नॉट अ लॉयर एंड आई डोंट क्लेम दैट आई नो द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेल, बट कभी कि आर्टिकल 149 लगा देंगे, हम सूबों को डायरेक्शंस दे देंगे। दिस वाज नेवर द इंटेंट इन माय ओपिनियन। आई हैव गॉन थ्रू, दो आई एम, as I said, I've gone through the papers, I've gone through the times, I've gone through the debates. When Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, it took them more than a year to debate and finalize the constitution. पहले जो committees बनी, फिर इधर, और जिस तरीके से उन्होंने साथ लेके, so this was never the intent. Provincial autonomy तो उन्होंने और ज़्यादा करनी थी, और 18वीं तरमीम के बाद जब concurrent list ख़त्म हो गई तो we went towards that direction और ज़्यादा। और उसके बाद वफाक कहे कि नहीं जी सूबे वो काम करें जैसे हम कहें, वो नहीं हो सकता। और that is where we look towards the House of the Federation to protect the interests of the provinces. मैं ये जो जुडिशल ओवररीच की बात की, इस पे मैं चाहूँगा कि एग्जीक्यूटिव तो प्रॉब्लम में है, लेकिन अब लेजिस्लेचर भी प्रॉब्लम में आएगा, और लेजिस्लेचर has to stand up for the constitution, not for its rights.
we have taken oath on the Constitution, and we also taken oath to preserve, protect, and defend the Constitution. So we should sort of not let any other arm of the country take over. This goes for, you know, all others. कि कहीं किसी को भी इंटरफेयर, आप ना पार्लियामेंट ना नेशनल असेंबली सेनेट के इख्तियारात में कुछ इंटरफेरेंस करे, एंड वाइस वर्सा, ना नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के इख्तियारात में इंटरफेयर करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है वो हो जाए। और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव्स को भी वैसे ट्रीट किया जाए, और जुडिशरी भी जो है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने कई जजमेंट्स में कह चुके हैं कि जी फलानी चीज़ जुडिशल ओवर रीच है, वो ना किया जाए। सर ये एक आध चीज़ मैंने और बतानी थी आपको एक बार फिर। एक और चीज़ जो मेरे थॉट्स है कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट, हमारे आइन आखिरी उसमें बेहतरी आ सकती है। एक सजेशन मेरी है कि इस हाउस ऑफ द फेडरेशन सेनेट को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे आप प्रॉपर अमेंडमेंट के साथ, ऑब्वियसली इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट कांट बी डन अदरवाइज, सूबों को इख्तियार दें कि सूबे अगर अपना केस कोई पेश करना चाहें तो आके सेनेट में पेश करें, बिकॉज यहाँ पे बराबर की नुमाइंदगी है सबकी। नेशनल असेंबली में वो पॉसिबल नहीं है, और ये कई ममालिक में ऐसी प्रोसीजर्स होते हैं कि स्टेट्स कम टू दी फेडरल, यू नो, वन ऑफ द लेजिस्लेचर्स एंड प्रेजेंट्स द केस। या आपको भी इख्तियार हो कि आप सूबों को किसी ऐसे मामले में जहाँ सूबा सिंध का कोई इशू आता है, तो आपको इख्तियार हो, आप चीफ मिनिस्टर को बुला सके और इधर उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स इस तरीके की कोई हो, तो ये एक और मेरा था कि 50 साल पूरे हो गए, वी शुड नॉट रिग्रेस, वी शुड गो फॉरवर्ड। एक बार फिर चेयरमैन साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इधर बुलाया सूबा सिंध को, मुझे बुलाया सूबा सिंध की नुमाइंदगी करने के लिए, गवर्नर साहब को बुलाया, बाकी गवर्नर्स भी हैं। मैं सारे प्रेसिडेंट और 5 सेनेटर्स को मुबारक देता हूँ। एक और चीज़ मुझे याद आई जो अगेन विच इज़ फॉर दिस हाउस, मेरे लिए एक इसका मकाम और ऊपर हो जाता है। व्हेन माय फादर पास्ड अवे, मैं सूबाई असेंबली का मेंबर था। हमारे सूबाई असेंबली ने उनके वफात पे कोई रेजोल्यूशन नहीं हमें टेबल करने दी थी, लेकिन सेनेट ने रेजोल्यूशन टेबल की थी और वो मुझे भेजी थी एज सन ऑफ सन। सो उसके लिए मैं सारी सेनेट का थैंक करता हूँ। और जिसने हमें सेनेट, खैर उसको रहने दें, मैं आई डोंट वांट टू, जिसने नहीं पेश करने दी थी उसी को हमने, इसलिए कि आई एम प्रॉब्ली दी ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट आपका इधर जो हूँ, हो सकता है कोई और MP हो बैठा इधर, लेकिन मैं आपका एक वोटर हूँ इस हाउस का। तो वो हमने वोट करके उन्हीं साहब को फिर सेनेट में भी भेजा है बाद में। एंड आई वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग दैट। खैर तो नहीं नाम वाम नहीं होता, मुनासिब नहीं है। तो ये मेरे लिए, यू नो, मेरे लिए ये भी मौका एक आ गया कि मैं शुक्रिया अदा करूँ इस हाउस का। उस वक्त मैंने चेयरमैन, देन चेयरमैन वसीम सजाद, उनको फ़ोन करके शुक्रिया तो अदा किया था, लेकिन इधर पूरे सेनेट के इदारे का शुक्रिया अदा करने के लिए एक और मुझे मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाह साहब बहुत मेहरबानी, आपके सजेशंस इंसान नोट करेंगे, इस पे हम कोई काम भी शुरू करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा गिफ्ट के लिए जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।